So we are starting with letter writing. I'm waiting, ma'am. I'm waiting, ma'am. Parts of a business letter. Now we are starting with the, actually it is a revision class, parts of a business letter. Now there are 14 parts of a business letter. How many are there? 14 parts of business letter. We'll discuss that one by one. The first is heading or letterhead. You already know what is the heading and letterhead. Heading is what you write on the सबसे पहले जो तुम लिखते हो. The first thing which you write in a formal letter is your address, your name and your address, and which means this is called the heading of the letter. When you're writing a letter on the company's letterhead, then it will be a letterhead. Letterhead और heading में क्या फर्क होता है? Heading में आपका name and address जाएगा. When you're writing on a plain sheet of paper, जब आप प्लेन पेपर पे लिख रहे होते हैं, then it is called a heading. Heading सबसे पहले number 1 पे आता है parts of a letter में, wherein you write in a block style, you write your name, your address, and when you are writing on the company's letterhead, किसी कंपनी में तुम काम कर रहे होते हो, वहां के letterhead पे official writing letterhead पे लिख रहे होते हो, तो that is called a letterhead. Letterhead में क्या क्या चीजें होती हैं? कंपनी का नेम होता है, कंपनी का एड्रेस होता है, कंपनी का लोगो होता है, the facts of the company, email of the company, the contact numbers of the company are all put in the letterhead. The letterhead सबसे ऊपर में रहता है, right across सबसे पहले एक letterhead is called the official letterhead. Contains the name, the contact number, the email ID, the fax, the branches, the phone number of branches, telex, fax, everything is there. तो अगर आप किसी कंपनी में लेटरहेड पे लिख रहे हैं तो आपका इनसाइड एड्रेस जरूरत नहीं लिखने का है, सॉरी, तो आपको अपना हेडिंग लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज़ दैट इज स्पेसिफाइड कि आप किसी कंपनी की तरफ से लिख रहे हैं लेटर. मैम वो तो कंपनी का हेडिंग होता ही है, तो आपको अपना लिखने का जरूरत नहीं है. You can start your letter right ahead without the heading. जरूरत नहीं है. अगर आप प्लेन पेपर में लिख रहे होते हैं तो हेडिंग आप डालेंगे. आपका फॉर एग्जांपल if you are writing a cover letter, excuse me, when you are writing a cover letter, the first thing which you will write on the left side will be your name and your address, right? This is called the heading or the letterhead. Second comes the date. I'm discussing the 14 parts of a letter. The date. After each segment, you will leave a white space. For example, when you see the screen, you will see inside address, then there's a space, date, and then the reference. What is reference? Company's reference, your reference. मैंने बताया था reference क्या होता है? For example, if your company is Amazon, it will be AZ/MRK. Company's initial name, it means Amazon, image CI, or SS if your company is SS. XYZ आपका कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अपना लेटर हेड, अपना रेफरेंस कैसे बनाएंगे? बताइए, नेम ऑफ द कंपनी बताइए कोई, बताओ ना कोई कंपनी का नाम. हाँ, ओके.
देन इनिशियल रहेगा उसका, जैसे ACCN ऑब्लिक, ये क्या है ACCN, इट मीन्स लेटर, इट इज द नेम ऑफ द कंपनी, इनिशियल्स ऑफ द कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस, तो क्या होगा MS ऑब्लिक, पूरा नाम नहीं डलता है, रेफरेंस छोटा होना चाहिए, द इनिशियल ऑफ द कंपनी, एंड देन कम्स द डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। एक कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? अकाउंट्स के होते हैं, मार्केटिंग के होते हैं, IT के होते हैं, HR के होते हैं। तो उसके बाद आप लिखेंगे, ऑब्लिक के बाद लिखेंगे आप डिपार्टमेंट का नाम, फॉर एग्जांपल IT डिपार्टमेंट, यू विल राइट IT। आप लिखो, बनाओ मेरे साथ, इनिशियल ऑफ द कंपनी ऑब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी ऑब्लिक लेटर नंबर। मतलब आज के दिन में IT डिपार्टमेंट से ये पहला लेटर जा रहा है तो 01, रेफरेंस लिख REF करके आप लिखेंगे, ठीक है। आप किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में देखते होंगे, वो रेफरेंस लिखते हैं ना, पेशेंट नंबर 1 2 3 4, उनके कंपाउंडर लिखते चले जाते हैं, रेफरेंस 01 02 03, और जब वो चला जाता है प्रिस्क्रिप्शन, वो अंदर चला जाता है, फिर वहां से पुकारा जाता है नंबर 2 नंबर 3, पता है कि नहीं, दैट इज द रेफरेंस, वो उनका रेफरेंस है। और किसी कंपनी में काम कर रहे होगे, कंपनी की तरफ से तुम लेटर लिख रहे हो लेटर हेड पे, तो तुम अपना रेफरेंस दोगे इनिशियल ऑफ द कंपनी ऑब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी ऑब्लिक नंबर ऑफ द लेटर। फॉर एग्जांपल आज 15th लेटर आज तुम लिख रहे हो, IT कंपनी से तुम्हारे डिपार्टमेंट से ये 15th लेटर जा रहा है, तो 15। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फर्स्ट लेटर जा रहा है। मैम यहाँ MS क्या है? MS means it is the initial of the company. MS मतलब कि किसी ने बताया था माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस, तो ये कंपनी का नाम है, तो रेफरेंस जब बनाएंगे तो उसका इनिशियल्स देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोदरेज इंडिया लिमिटेड, तो क्या होगा, सॉरी GI होगा ना, GI ऑब्लिक। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट से चिट्ठी जा रही है, IT के डिपार्टमेंट की MS की अलग हो गई, अब गोदरेज इंडिया लिमिटेड की मार्केटिंग की जा रही है लेटर, किस डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग, MRK ऑब्लिक, एंड दिस इज द 5th लेटर 05, समझिए। रेफरेंस पर्सनल चीज रहता है, आपको जैसे बनाना है, लेकिन कंपनी का नाम, कंपनी का नेम सेम रहेगा, डिपार्टमेंट डिफरेंट हो सकता है, एंड लेटर नंबर डिफरेंट हो सकता है। अंडरस्टूड रेफरेंस? नाउ वी कम टू द इनसाइड एड्रेस, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट टुडे। इनसाइड एड्रेस क्या है? रिसिपिएंट्स एड्रेस है, जिसको तुम लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस, जहां, फॉर एग्जाम्पल हु इज राइटिंग टू हुम, तुम हेडिंग में तो अपना एड्रेस लिख ही चुके हो पूरा, है कि नहीं? हेडिंग में तुमने पूरा लिखा ना अपना एड्रेस, हाँ, इनसाइड एड्रेस में तुम उसका लिखोगे एड्रेस जिसको तुम चिट्ठी भेज रहे हो। इनसाइड एड्रेस मींस रिसिपिएंट्स एड्रेस, उनका नाम, व्हाट आर यू डूइंग, लिखो तुम, अभी इनसाइड एड्रेस लिखो तुम मेरे सामने, मैं यहाँ लिख रही हूँ, वर्कशॉप बना कर रही हूँ तुम्हारे साथ में, हम आई एम डूइंग द वर्कशॉप विथ यू, मैं वर्क कर रही हूँ, तुम आप बैठ के देख रहे हो, तुम कुछ और काम कर रहे हो। I'll tell you, I'll scrap your class. लिखो इनसाइड एड्रेस, तुमने एक्चुअली प्रैक्टिकली बिजनेस इंग्लिश क्लास किए नहीं हो फर्स्ट सेमेस्टर में, दैट इज व्हाई ये हाल तुम लोग है। फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग टू मिस्टर मल्होत्रा ऑफ इंफोसिस, इनसाइड एड्रेस क्या लिखोगे? मिस्टर RK मल्होत्रा, कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट नेम, मजाक नहीं है,
इसलिए 5 नंबर आया है। उनका नेम, उनका रेजिग्नेशन, मिस्टर आर के मल्होत्रा, मार्केटिंग मैनेजर और आईटी मैनेजर। कंप्लीट एड्रेस जो तुम एनवेलप पर डालोगे, कंप्लीट एड्रेस मतलब होता है कंप्लीट एड्रेस, नेम, डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस। प्लीज राइट। मैथ्स एंड बिजनेस इंग्लिश लेक्चर नहीं होता है, यू हैव टू डू इट। क्या टू नहीं लिखना है, यही सब कॉन्सेप्ट तुम लोग को चेंज करना है। Inside address, write only the address of the person जिसको तुम लेटर लिख रहे हो। The recipient's address कहा जाता है उसको, right? Then you will leave a space and write the subject line. Subject line can include short phrases or sentences which should be meaningful. What is the importance of subject line? It clarifies, it specifies, it highlights why the letter is being written. बुक में दिया हुआ ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन होता है उसमें रिसिपिएंट्स का नाम है। तो इनसाइड एड्रेस रिसिपिएंट्स एड्रेस होता ही है। मैम इसमें जो आप ये लाइन लिखी हुई है MRK 05 ये तो हो गया जो रेफरेंस नंबर है एक नंबर है। हाँ, ताकि तुमको जो लेटर वापस लिखेगा तो लिखेगा ना डियर सर प्लीज refer to your number dated MS/110 whatever। तो ये रेफरेंस आपको ट्रेस बैक करेगा, जो लेटर आप जिसको लिख रहे हैं वो भी आपको रेफर कर देगा कि प्लीज रेफर टू योर लेटर रेफरेंस डेटेड also। Next comes salutations or dear sir, dear ma'am, dear Mr. Sharma, dear Mr. Malhotra, right? Next comes body paragraphs। AKU के एग्जाम में आया था, बॉडी ऑफ द लेटर का कितने पार्ट्स होते हैं? MCQ में आया था 3 पार्ट होते हैं। And then complimentary close, it means yours sincerely, yours truly, yours faithfully, and then the signature and writer's identification। तो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, आपका लेटर कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद बहुत चीजें डलती हैं, डाली जाती हैं अगर जरूरत होता तो, एज पर द सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल एनक्लोजर्स। मैम कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। आगे हम डील किए हैं इसको। क्या पूछ रहे हो? ग्रीटिंग मतलब डियर सर, डियर मैम। योर सिंसियरली, फिर आप लिखेंगे नाम अपना। आगे इसको आई हैव डेल्ट ऑल दीज थिंग्स। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद सिग्नेचर्स एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन। आपका सिग्नेचर, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन। मैम ये बॉडी पैराग्राफ लिखे हुए 2-3 लाइन तक जो 3 लिखे हुए 3 लिखे जो हैं वो 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। The letter, the body part of the letter is divided into 3 parts। आगे हम डील किए हैं इस चीज को। ENCL मतलब enclosures,
मतलब अगर अटैचमेंट कुछ आपने डाला है, चेक डाला है आपने अपना कवर लेटर डाला है, you're sending your resume, तो आप वो सब डालेंगे enclosures as above, AA शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, AA लिखिएगा, मतलब कि जैसा मैंने लिखा है enclosures attachment, check, it can be a check, it can be receipt, it can be cover letter, it can be your resume, it can be your photograph, it can be signed documents. Now तुम्हारा CC कॉपी सर्कुलेशन, मतलब तुमने मुझे अगर लेटर लिखा और तुम CC करके पोदार सर को भी भेजते हो, मेघा मैम को भी भेजते हो, डायरेक्टर सर को भी भेजते हो, तो हाँ, तो उनके सबके नेम्स मालूम होने चाहिए। ईमेल आईडी, हाँ, ईमेल आईडी आप या मेल पे आप भेज रहे हैं तो सबके नेम्स शो करेंगे, ठीक है। संजना मैम को पता रहेगा कि ये सिमरन ने जो भेजा है, ये पोदार सर को भी भेजा है, मेघा मैम को भी भेजा है, सर को भी भेजा है, HOD IT शुक्ला सर को भी भेजा हुआ है, तो एवरीबडी विल नो कि किसको किसको लेटर मिला हुआ है, ठीक है। CC मैम सीसी कंबाइंड कार्बन कॉपी ऐसे करते हैं। कार्बन कॉपी कहा जाता है, लेकिन कार्बन कॉपी नहीं कहा जाता, उसको आम भाषा में कहते हैं, इट इज कॉल्ड कॉपी सर्कुलेशन। इट मींस दिस लेटर इज बीइंग सर्कुलेटेड टू डिफरेंट पर्सन्स whose names are already mentioned. हाँ, उस पे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कॉपी सर्कुलेशन। इट मींस आपने मुझे लिखा, ठीक है, और BCC टू द होल क्लास, तो BCC मतलब ब्लाइंड, मुझे पता नहीं चलेगा कि सिमरन ने और ये ग्रीटिंग कार्ड किसको किसको भेजा हुआ है। सीसी का भी और क्या बोलेंगे कि वो नहीं कार्बन कॉपी सर्कुलेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉपी सर्कुलेशन CC। तो CC में तो हम जान पाएंगे, लोग जान पाएंगे कि और किसको किसको चिट्ठी मिली है। ब्लाइंड में पता नहीं चलेगा, हाँ हमको मालूम पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि और किसको किसको भेजा गया है। एक तो एड्रेस होगा ना, संजना मैम एंड BCC टू होल क्लास। नहीं, ज्वाइनिंग लेटर सब BCC क्यों भेजेंगे हम? ज्वाइनिंग में सिर्फ आप जानेगा, हम जानेंगे। ग्रीटिंग कार्ड लोग भेजते हैं इस तरह से, कोई न्यू ईयर ग्रीटिंग हुआ या क्रिसमस ग्रीटिंग हुआ, तो BCC टू द होल कॉन्टैक्ट, ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो मतलब ये ग्रीटिंग कार्ड जो दिवाली ग्रीटिंग हुआ या न्यू ईयर ग्रीटिंग हुआ, ये हम लोग सबको भेज देते हैं टू ऑल कॉन्टैक्ट्स। द मैसेज इज फ्लैश्ड टू एवरीबॉडी। लेकिन मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट में और कौन कौन लोग हैं। आई विल नॉट नो द नेम्स ऑफ द पीपल who have received the BCC। तो क्या फर्क है? CC में लोग जानते हैं, समझ पाएंगे, BCC में you will not know who else has received the letter। Clear, सिमरन? Clear? चलिए अब पोस्टस्क्रिप्ट PS। पोस्टस्क्रिप्ट लोग लिखते हैं चिट्ठी लिखने की, योर सिंसियरली योर ट्रूली लिखने के बाद कोई ऐसी बात है जो तुम हाईलाइट करना चाहते हो। आफ्टर थॉट, लेटर लिखने के बाद समथिंग यू वांट टू हाईलाइट। फॉर एग्जांपल यू आर इनवाइटिंग एवरीबॉडी टू अटेंड द मीटिंग, क्लब मीटिंग है, व्हाटएवर मीटिंग है, तो नीचे तुम लिखोगे प्लीज बी सीटेड बाय 5 o'clock, PS करके। पोस्ट का मतलब होता है बाद, पोस्ट लंच, लंच के बाद। पोस्टस्क्रिप्ट लिखने, लेटर लिखने के बाद कुछ ऐसी चीजें जो हाईलाइट करते हैं। पोस्टस्क्रिप्ट, प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनी गिफ्ट्स। क्या हाईलाइट? नॉर्मल भाषा में यू वांट टू हाईलाइट समथिंग। उसको जैसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट। नहीं नहीं, PS का मतलब ही होगा हाईलाइटेड हो गया। तो PS लिख के बाकी नॉर्मल। हाँ, PS लिख करके तुम लिख दोगे। तो PS में ये खास बात है कि आप पर्सनल लेटर में भी PS लिख सकते हैं और ऑफिशियल लेटर में भी PS लिख सकते हैं, ठीक है।
शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है PS। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं नोटा बेने, आप है ना, उसका भी मतलब भी वही होता है, यू वांट टू हाईलाइट समथिंग, हाँ, समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। जैसे प्लीज ब्रिंग योर एडमिट कार्ड, फिर एग्जामिनेशन के लिए लेटर लिख रहे हैं हम, तो BS करें क्या लिखेंगे, NB प्लीज ब्रिंग योर एडमिट कार्ड। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको हम डालेंगे PS में या फिर NB। हाँ, PS में भी हो सकता है। डू नॉट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क। जैसे कितने पार्टीज के इन्विटेशन आते हैं तो उसमें लिखा रहता है PS डू नॉट ब्रिंग एनी गिफ्ट्स। तो देखिए सब डेल्ट, कीप क्वाइट। नाउ 14 पार्ट्स को डील कर दिया गया है। The heading or the letterhead, keep quiet. It usually contains the name and address of the business or an organization. It can also have an email address, contact number, fax number, trademark, or logo of the business concern. Number 2, date. We write the date below the heading. Third, reference. You already understood? It shows the department of the organization sending the letter. The letter number can also be used as a reference. Number 4, inside address. It includes the name, address, and postal code and job title of the recipient. Job title मतलब होता है उनका designation क्या है, general manager whatever. It must be mentioned after the reference. Reference के बाद ही होता है. One must write inside address on the left side of the sheet. It means they are hinting you to write the letter in block style. Subject. It is a brief statement mentioning the reason for writing the letter. It should be clear, eye-catchy. What do you mean by eye-catchy? मतलब ऐसी बात जो कि सिंपल हो और अट्रैक्टिव हो and easily understandable. किसी ने पूछा सैल्यूटेशन क्या होता है? Greeting or salutation. It contains the words to greet the recipient. It is also known as a salutation. The type of salutation depends upon the relationship with the recipient. It generally includes words like dear sir, dear madam, respected, or just sir, madam. MS, a comma, usually follows the salutation. The most important part, the body paragraph. Number 7. This is the main part of the letter. It contains the actual message of the sender. The main body of the mail must be clear and simple to understand. The body of the letter is basically divided into 3 main categories. First is, please don't talk, please don't talk. Opening part. The first paragraph of the mail must include your identification. It also contains the previous correspondence, if any. Main part. This paragraph states the main idea of the reason for writing. It must be clear, concise, complete, and to the point. The third is the concluding part. पढ़िए कोई, तुम पढ़ो. बस एक बार पढ़ो.
is the conclusion of Conclusion. conclusion of the business letter. It shows the suggestion or the need of the action. The closing of the letter shows the expectation of the sender from the Recipient. recipient. Always end your mail by courteous word like taking you, Thanking you. warm regards, look forward to hearing from your side. It. पढ़िए समरीन. Complimentary close. हाँ? Simran. Complimentary. Complimentary clause. It is a humble way of ending a letter. It is written in accordance with the salutations. The most generally used complimentary clauses are yours faithfully, yours sincere, yours truly, and your thanks and regards. So yours faithfully, yours sincerely, yours truly, and thanks and regards your name. पढ़ो कोई. Next 9 signature. It includes the signatures, names, and No talking. designations of the senders. It can also include other details like contact number, address, etc. The signature is handwritten just above the name of the sender. Enclosure shows the document attached to Enclosures. So the documents attached to the letters, the documents can be anything like check, drafts, bills, receipts, invoice, etc. It is listed one by one. Copy circulation. It is needed when the copies of the letter are sent to other person. It is denoted as C.C. CC. Blind carbon copy. ECC. Start for blind carbon copies. Sorry, stands for blind carbon copies. Just like BCC is a way of sending copies of an email to other people. The difference. Am I doing it? बैठा है कैसे नहीं? Of an email to other people, the difference between the two is that while you can see a list of recipients when CC is used, that's not the case with BCC. It's called blind carbon copy because the other recipients won't be able to see that someone else has been sent a copy of the email. Okay. Postscript. Scroll please. 13th. Postscript. The sender can mention it when he wants to add something other than the message in the body of the letter. It is written as P.S. Yes. Not Nota bene. Nota bene, which translate as note well. When you want the reader to pay close attention to something and not the views expressed in the blog post are those of the author alone. Nota bene is always abbreviated with capital letter, example, and not me. Understood parts of letter? Type of. Oh, forget that. Did you understand parts of letter? Doubt clear हुआ? Yes, ma'am. Fine.